Hello everyone. This video is in link with the first video on the chapter World of Numbers, which was uploaded recently by me. This one is an interactive quiz, as you can see on your screen. The first page of our PowerPoint slide says. So there are certain questions I have picked out of the topic in order to assess that how much attentive we were during the lesson and how much we are clear with the concepts. So let us start without any further delay and hope that it will be an enjoying session for everyone instead of rather taking it as a traditional test or exam, which we usually see in our other places. So no one is going to give you any certain marks over here. It will be you only who will decide your marks. It will be you only who will assess your mistakes. And it will be you only who will correct and rectify and improve. So I hope this is the best comfortable area and you won't feel awkward like other places when we are giving the test or examinations. Uh, Things like humiliations kind of situations come. So that won't be here. So with this positive thought, let us start. So the very first question says, a herder uses pebbles to track cattle. Just help me make me sure that my audio is reaching there. Yes, mic was far. Now it is better. So a herder uses pebbles to track cattle using one-to-one correspondence. I hope you remember one-to-one correspondence was discussed that day. Yes, that iCard example. So each student is having own iCard. So that is what one-to-one identity, one-to-one correspondence. So herder is using that with the help of what? Pebbles, small stones. He starts with 12 pebbles. So he's having 12 small stones in his hand. At dusk, means in the evening time, three cows have not returned. We know that three cows have not returned. Now, in that situation, they were using pebbles to get this thing that whether the same number of cows have returned or whether any cow has gone missing or not. So there was a technique discussed in that video lesson. So how many pebbles will remain in the pot? If three cows have not returned, then how many pebbles will remain in the pot? That is the question. So as it is first question, let me try to explain to you. Else you can pause and you can choose your answer. But the best way will be that you should keep a notebook along with you, a notebook and pen. And the question, you also mark your correct answers. And in the next moment, you will see what will the correct answer on the screen. Then you cross check your answer with the correct answer. If it is right, then bingo, your concepts are going good. If it is wrong, then just try to improve it, correct wherever the mistake is, try to understand. If still there is a doubt, you can approach to me and I will clarify that where the exactly doubt lies. In order to approach me, my number is there on the slide, and also you can approach to Google Forms I circulate, or YouTube comment section is obviously an open platform. So there you can post your doubts or queries. I will surely respond. So what here the situation means is that there are three pots. So let me try to make you recall with the help of a figure. So what they were doing is they were keeping small pots made up of mud, clay, है ना, मिट्टी के छोटे छोटे घड़े उन्होंने रख लिए. मान लीजिए उनके पास
6 काउज है यहाँ पे, मतलब स्पेस उतना नहीं है, 6 काउज है, उन्होंने 6 छोटे छोटे मटके रख लिए। अब जब उसमें कोई सुबह वो गाय को ले जा रहे हैं, तो उसमें वो क्या कर देते हैं, एक स्टोन गिरा देते हैं जब वो गाय को वहां से निकाल रहे हैं। और जब शाम को गाय वापस आती है, तो इस स्टोन को क्या कर लेते हैं, पॉट से बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि इसको वो हटा लेते हैं स्टोन। तो इस तरह से अगर उन्होंने जब एक सिचुएशन आपके सामने जो दी गई है, अगर वहां पे 12 पत्थर है, यानी 12 गाय का एक पूरा ग्रुप था, हर्ड था, झुंड था, जो ग्रास ग्रेजिंग यानी कि घास चरने के लिए गया हुआ था चरवाहे के द्वारा, तो जब वापस वो लौटे तो ये सिचुएशन थी कि 3 गाय वापस नहीं आई थी। तो ऐसे में कितने पत्थर जो है वो पॉट में रह गए, कितने पत्थर पॉट में रह गए, तो वो हम क्या देख पाएंगे कि अगर 3 गाय नहीं आई हैं, तो बाकी पॉट में से तो स्टोन्स जो है वो निकाल लिया जाएगा, जैसे जैसे गाय वहां पे लगती जाएगी। यहाँ गाय खड़ी हुई और यहाँ का पत्थर निकाल लिया, यहाँ गाय खड़ी हुई, यहाँ का पत्थर निकाल लिया। तो इस तरह से करके जहां जहां गाय खड़ी हुई वहां का पत्थर उन लोगों ने निकाल लिया। पर जहां गाय नहीं खड़ी हुई, क्योंकि वो तो मिसिंग है, तो वहां पत्थर अभी भी क्या है, पड़ा हुआ है। तो कितने पेबल्स पड़े हुए हैं, तो 3 गाय नहीं आई हैं, तो ऑब्वियसली 3 पेबल्स जो है, 3 पत्थर जो है वो अभी भी मटके में पड़े रहेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो देयर इट गोस। आई होप आपका आंसर भी यही रहा होगा। इफ नॉट तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इन द स्टार्टिंग होता है, हम लोग भी ऐसे ही सीखे। तो मिस्टेक्स होने दीजिए, मिस्टेक्स को इग्नोर मत कीजिए, मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करिए, उसको उससे भागिए नहीं, अपने मिस्टेक्स को जानने की कोशिश करिए, और जरूरत नहीं किसी और को बताने या जानने की, आप खुद केवल जानिए और उसको बस साइलेंटली इंप्रूव कर लीजिए, यानी कि एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट बस रखना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द इशांगो बोन हैज वन कॉलम showing 11, 13, 17, 19। याद आ रहा है, इशांगो बोन पे 11, 13, 17, 19 ऐसे जगह जगह पे स्पेस गैपिंग दे करके, अगर आपको फोटो याद दे रही हो तो स्पेसिंग दे करके वहां पे क्या थे, नॉचेस यानी कि लाइंस खिंची हुई देखी गई है, पाई गई है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी डू ऑल दीज नंबर्स शेयर। इन चारों में कौन सी मैथ्स की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है कॉमन, एंड व्हाट आर द नेक्स्ट टू नंबर्स विद दैट प्रॉपर्टी। और अगर वो प्रॉपर्टी को हम ध्यान में रखें, तो अगले 2 नंबर क्या बनने चाहिए उस प्रॉपर्टी के आधार पे। तो चलिए एक टाइमर स्टार्ट करते हैं, 5 सेकंड का आपको टाइम देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो आई होप यू हैव रिटन द करेक्ट आंसर इन योर नोटबुक। जैसे मैंने कहा, एक नोटबुक साथ में रखिए और पेन, और क्वेश्चन एटलीस्ट स्क्रीनशॉट के साथ आप क्वेश्चन रख सकते हैं, ऑप्शंस का आंसर आप लिख लीजिए ऑन द स्पॉट, साथ साथ मैच करते चलिए कि कितना स्कोर आपका बन रहा है, और आप अपने एट द एंड ऑफ द क्विज अपने आप को इवेल्युएट करिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कहीं डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, और अपना स्कोर के अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करिए। वीडियो लेसन्स को अटेंटिवली देखिए, सुनिए और समझिए, या फिर अदर बुक्स को अच्छे से पढ़िए और कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करिए, जैसे भी आपका इम्प्रूवमेंट होता है। तो आई होप अब तक आप सभी का आंसर आ चुका है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Yes, because all these numbers 11, 13, 17 and 19, they are of what nature? They are prime numbers. They are prime numbers. And the next number, 19 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या होगा? क्या 20 एक प्राइम नंबर है? क्या 20 एक प्राइम नंबर है? तो हम प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं?
प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो केवल वन से सारे ही नंबर डिवाइड हो जाते हैं और खुद से डिवाइड होता है। इस तरह से हम प्राइम नंबर्स को समझते हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। और किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं हो पाता, यानी कि और कोई नंबर उसका फैक्टर नहीं है। यानी कि प्राइम नंबर में फैक्टर के रूप में आपको अगर x एक प्राइम नंबर है तो फैक्टर के रूप में आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो सभी नंबर्स में मिलता है, और नंबर x खुद मिलेगा। ये दो नंबर्स उसके क्या हैं? फैक्टर है। इसके अलावा कोई एडिशनल फैक्टर आपको वहां दिखाई नहीं देगा, तो वो नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 के फैक्टर्स है 1, 3। बड़े नंबर्स ले लें तो 19, तो 19 का क्या हो जाएगा? 1, 19। तो हर जगह हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? केवल दो फैक्टर। तो प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। 1 जो है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 1 का फैक्टर क्या मिलेगा? 1, और नंबर इटसेल्फ वाले में भी 1 ही आएगा, तो अलग अलग तो माना नहीं जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हुआ? केवल एक फैक्टर हुआ। तो ये प्राइम नंबर में नहीं, दो फैक्टर होने चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर रहेगा, स्मॉलेस्ट, वो क्या माना जाएगा? 2। क्या माना जाएगा? 2। तो किसी भी चीज को हम जब जाने तो एकदम डिटेल में जाने, तो फिर मजा आता है, और हम कहीं पे अटकते नहीं, किसी तरह के क्वेश्चन में फंसते नहीं है, चाहे वो हमारे स्कूल के एग्जाम क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो बोर्ड क्वेश्चन पेपर हो, कहीं पर भी। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इसी को कहते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 डिवाइड हो जाता है। 4 के फैक्टर्स अगर आप लिखें तो 4 के फैक्टर है 1, 2 और 4, तो इसलिए प्राइम नंबर। तो उसी तरह से 19 के बाद के पूछे जा रहे हैं, तो 20 के फैक्टर अगर हम लिखें तो 20 के फैक्टर्स क्या मिल जाएंगे? 1, 2 से डिवाइड हो जाता है, हाँ हो जाता है 10 टाइम्स में। 3 से नहीं होता है, 4 से हो जाएगा, 4 5 जा 20, 5 से हो जाएगा, 5 4 जा 20। स्पीड में थोड़ी फास्ट रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेसन्स बहुत लंबे हो जाते हैं, तो आप इसको स्पीड कम करके, स्टॉप करके, पॉज करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 6 से डिवाइड नहीं होता है, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, एंड देन स्ट्रेट अवे 27। आई होप आई एम करेक्ट। जल्दीबाजी में मुझसे भी गलती हो सकती है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये 20 के फैक्टर सामने नजर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली दो से तो ज्यादा ही है। तो 20 क्या है? प्राइम नंबर नहीं, तो हम 20 का नाम नहीं लेंगे। तो 21 अगर हम सर्च करें, 21 के भी ज्यादा फैक्टर होते हैं, 3 से डिवाइड हो जाता है, 7 से हो जाता है, 21 भी प्राइम नंबर नहीं है। 22 की बात करें तो 22 2 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, जब 23 पे हम आते हैं तो फिर कोई नंबर दिमाग में नहीं आ रहा है जो 23 को डिवाइड कर पाए। आ रहा है क्या? नहीं। तो 23 क्या है? प्राइम नंबर है। तो अगला नंबर 19 के बाद जो होना चाहिए वो है 23, जो कि हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, और यहाँ पे प्रॉपर्टी भी सही सही लिखी दिखाई दे रही, प्राइम नंबर। 23 के बाद इसी तरह से हम चेक करेंगे, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 डिवाइड हो जाता है 3 से, 3 9 27, 9 3 27, तो नहीं है। 28 नहीं है प्राइम नंबर, 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 29, तो 29 प्राइम नंबर है, क्योंकि वो किसी नंबर से नहीं। तो यानी इस हिसाब से कौन होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन? तक आपको आइडिया लग गया है? जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। There it goes. Explanation is also given at the bottom, but it is saying the same thing which we have discussed. So let us proceed to the next question. Question number 3, everyone. Merchant at Lothal receives 15 copper ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags to market, how many copper ingots does he leave with? तो एक व्यापारी है लोथल, जो कि गुजरात में एक जगह है। गुजरात काफी व्यापार के लिए जाना जाता है। तो गुजरात में एक व्यापारी क्या कर रहा है, जब वो 2
बैग भर करके मसाले लेके आ रहा है और वहां पे मार्केट में सेल कर दे रहा है दुकानदार को, तो उसको उसके बदले क्या मिल रहा है? 15 कॉपर के सिक्के मिल रहे हैं, 15 कॉपर इनगॉट्स। तो दो बैग मसाले के लिए, इन शॉर्ट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, उसको क्या मिल रहे हैं? 15 कॉपर के सिक्के मिल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स टू मार्केट, तो ऐसे में उसे कितने कॉपर के सिक्के मिलने चाहिए? तो यहाँ पे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, नाम आप भले इस मेथड का सुने ना सुने हो, पर इस्तेमाल आप डेली इसको लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। क्या है यूनिटरी मेथड? कि अगर आपको कोई सिचुएशन में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए पर्टिकुलर वैल्यू पता है, जैसे यहाँ पे 2 बैग मसाले के लिए 15 कॉपर के सिक्के मिल रहे हैं। अगर आपको एक का हिसाब पता चल जाए कि वन बैग पे वन बैग पे कितने कॉपर सिक्के बनने चाहिए, तो आपसे जितने भी बैग के बारे में पूछा जाए आप जवाब दे लेंगे। दूसरा रेफरेंस अगर मैं दूं, तो मान लीजिए आप टॉफी या चॉकलेट लेने निकले हैं। आप दुकान पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो टॉफी या चॉकलेट आपको पसंद आ रही है, वो एक चॉकलेट आपका 5 रुपए का पड़ रहा है। एक चॉकलेट आपका 5 रुपए का पड़ रहा है। अब मान लीजिए आप लोग, या किसी कारणवश आपको, आप 5 भाई बहन हैं तो आपको 5 चॉकलेट खरीदनी है, या मान लीजिए आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने बर्थडे पे अपने 10 दोस्तों के बीच में, तो आप 10 चॉकलेट खरीद रहे हैं। तो एक चॉकलेट अगर 5 रुपए का है, एक चॉकलेट अगर 5 रुपए का है, तो 10 चॉकलेट कितने का हो जाएगा? 10 चॉकलेट कितने का हो जाएगा? तो दिमाग में क्या जवाब आ रहा है? सही कहा आपने। आप क्या कर लेंगे? 5 into 10, यानी कि 50 रुपीज आपके पास होने चाहिए। तो मेथड का नेम हो ना हो, यूज हम कर रहे हैं, तो उतना काफी है। तो यहाँ पे 2 बैग पे आपको 15 कॉपर के सिक्के मिले, 2 बैग पे आपको 15 कॉपर के सिक्के मिले, तो वन पे कितने मिलेंगे उसके लिए हम क्या कर लेंगे? जब कहीं पे डायरेक्ट प्रपोर्शन हो, जैसे क्या होगा, अगर मसाले बढ़ गए तो सिक्के भी बढ़ जाएंगे, तो इस तरह के रिलेशन को क्या कहेंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट प्रपोर्शन। मैथ में एक कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट एंड इनवर्स। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी भी इंक्रीज कर रही होती है। तो जब हम 2 बैग से एक बैग पे आ रहे हैं, तो यानी कि हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये 15 भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और कितना मिलेगा उसके लिए हम, हमारी मदद कौन करता है? डिवीजन, डिवीजन फंक्शन। तो 15 ÷ 2, यानी एक बैग पे 7.5 सिक्के मिलते। ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं, किसी सिक्के को तोड़ा नहीं जाएगा, बट फिर भी एक आइडिया हमारे लगने के लिए ये हमको मदद करेगा आगे। तो आगे क्या पूछा जा रहा है कि 12 बैग्स पर कितने जो है वो सिक्के मिलने चाहिए। तो एक बैग पे अगर 15/2 कॉइन्स मिल रहे हैं, तो 12 बैग्स के लिए 15/2 into 12, जैसे यहाँ पे हमने 5 into 10 किया था। 1 चॉकलेट 5 रुपीज, तो 10 चॉकलेट के लिए 10 से मल्टीप्लाई। तो 1 बैग पे 15/2 कॉइन्स, तो 12 बैग पे 15/2 into 12 कॉइन्स। अब आप देखेंगे कि 2 से 12 सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 6 12, आपने कैंसिल कर दिया, बचा कि आपके पास न्यूमरेटर में 15 into 6, 15 into 6, तो 15 6 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 15 6 90। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा बनना चाहिए? ए, बी, सी या डी? हाँ, करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, 90 ingots. लेट अस चेक। बिंगो। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रह्मगुप्त's rule states a minus 0 is equal to a. ब्रह्मगुप्त ने इंटीजर वाले नियम को समझाया था। तो अगर हम किसी नंबर में से 0 घटाते हैं तो वो नंबर खुद मिल जाता है। a minus 0 is equal to a का मतलब ये है।
एक ही जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा 5, 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा 6, नेगेटिव भी ले सकते हैं, -5 माइनस 0 क्या हो जाएगा -5। यूजिंग दिस लॉजिक व्हाट वुड 0 इक्वल 0 minus a, sorry, using this logic, what would 0 minus a equal, and why does this require negative number? इस लॉजिक से 0 माइनस ए क्या होगा? तो पहले तो जवाब हम सबके दिमाग में आ रहा है कि 0 माइनस ए क्या होगा, माइनस ए। इंटीजर का कॉन्सेप्ट ये कहता है, हमने पढ़ा है, तो माइनस ए आएगा आंसर में। अब यहाँ पे जो हमने माइनस ए लिखा, तो माइनस साइन का यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है मीनिंग कि हमें ये माइनस क्यों लगाना पड़ा, व्हाई डज दिस नेगेटिव नंबर। ऑप्शन देखिए तो 0 बिकॉज 0 माइनस एनीथिंग इज 0, बी कहता है बिकॉज सब्ट्रैक्शन रिवर्सेस एडिशन, सी कहता है बिकॉज सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रॉम नथिंग क्रिएट्स अ डेफिसिट, और डी कहता है कि अनडिफाइंड बिकॉज यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ए, मतलब सी, सॉरी, यहाँ पे माइनस ए दिख रहा है आंसर के तौर पे, पर रीजन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि माइनस साइन यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि इसका अर्थ ये समझा जा सकता है कि यहाँ पे क्या कह रहा है इंग्लिश में, बिकॉज सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रॉम नथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, और आपको उसमें से क्या करना है, ए रुपए किसी को देने हैं, ए रुपए किसी को देने हैं, तो आपके पास है ही नहीं, तो आप कहां से दे पाएंगे, आपके पास है ही नहीं, तो आप कहां से दे पाएंगे, डेफिसिट यानी कि कमी क्रिएट हो गई, शॉर्ट पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, डेफिसिट। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि हमें देना सिचुएशन में माइनस ए सिचुएशन में हम पड़े हुए हैं, हमारा बैलेंस माइनस ए रुपीस है, क्यों, क्योंकि हम ए रुपए क्या हो गए, उधार में चले गए, कर्ज में चले गए, डेप्ट में चले गए। तो इसी चीज को ब्रह्मगुप्त ने डेप्ट और फॉर्च्यून वर्ड यूज करके समझाया है। गणित मंजरी में आप पढ़ें तो ये शब्द इनके ये हैं, तो ये तो इंग्लिश के शब्द हैं, इनके जो ब्रह्मगुप्त के शब्द थे वो थे धन और ऋण। तो धन मतलब कि वृद्धि, और ऋण मतलब कि घटना, यानी कि कर्ज। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ब्रह्मगुप्त का, जिस तरीके से उन्होंने इंटीजर्स को समझाया है। इंटीजर्स हमने पहले भी पढ़ा है, पर जिस तरह से ब्रह्मगुप्त ने, उनका जो नजरिया है इंटीजर्स को लेकर के, वो बहुत प्यारा और कमाल का है, तो उसे जरूर समझना चाहिए। Question number 5. Natural numbers n is equal to 1, 2, 3 and so on are closed under addition. So I hope you recall closure property. Closure property. Closure property क्या कहता है कि अगर आप 1 यानी कि एक नेचुरल नंबर में 2 यानी कि अगेन एक नेचुरल नंबर ऐड करें, तो आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस 2 कितना होता है, 1 प्लस 2 कितना होता है, ये है, मान लो आगे क्या, ये 1 है और ये 2 है, इसमें एक एक ब्लर हो जा रहा है, इसमें एक और ऐड कर, एक और ऐड कर, तो अब कितने हो गए 3, कितने हो गए 3। तो ये चीज है, तो 1 प्लस 2 का जवाब क्या है 3। और 3 किस तरह का नंबर होता है, क्या ये नेचुरल नंबर में आता है क्या, बिल्कुल आता है, 3 भी एक तरह का नेचुरल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर आप किसी नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से ऐड करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो भी नेचुरल नंबर होता है। अब कह रहे हैं विच ऑपरेशन ब्रेक्स दिस क्लोजर, कौन सा ऑपरेशन होता है, यानी ऑपरेशन मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कौन सा ऑपरेशन होता है जो इस क्लोजर वाली बात को ब्रेक कर देता है, यानी कि नहीं फॉलो करता है, और वहां पे क्या हो जाता है, नेगेटिव इंटीजर वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसका इन्वेंशन हो जाता है। तो क्या एडिशन पे ये होगा, नहीं। क्या मल्टीप्लीकेशन पे ये होगा, तो हम कोई दो नेचुरल नंबर ले लें, 5 इंटू 12 तो 60, तो यहाँ भी नहीं हुआ। सब्ट्रैक्शन व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज टेकन फ्रॉम अ लार्जर, यानी कि हमारे पास कोई नंबर है लेट्स से 5, और उसमें से हम एक और बड़ा नंबर यानी कि 7 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो
और डी ऑप्शन कहता है सब्ट्रैक्शन व्हेन अ लार्ज नंबर इज टेकन फ्रॉम अ स्मॉलर। अच्छा नहीं, सॉरी, यहाँ पे इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। तो ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज टेकन फ्रॉम अ लार्जर, तो एक लार्जर नंबर मान लीजिए हमने 7 मान लिया, उसमें से हम एक स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर 5 निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप एक छोटा नंबर ले लेते हो और उसमें से आप प्रयास करते हो एक बड़े नंबर को घटाने का। तो कौन सी सिचुएशन में हम नेचुरल नंबर के परे चले जाएंगे, पार चले जाएंगे? तो 7 माइनस 5 का रिजल्ट तो 2 आएगा, तो वो नेचुरल नंबर होता है। और 3 माइनस 7 का रिजल्ट क्या आएगा? -4। तो यहाँ पे आ गया आपका निगेटिव नंबर, ये नेचुरल नंबर में नहीं आता है। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो -4 निगेटिव इंटीजर कौन सी सिचुएशन में आया? ऑप्शन डी। तो करेक्ट क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। तो लेंथी वीडियोस को आप लोग अवॉइड करते हैं, तो मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। 5 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप खुद जज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। अपने आप को भी जज मत करिएगा, जज गलत वर्ड हो जाएगा। इवैल्यूएट करिए, इम्प्रूव करिए और इम्प्रोवाइज करिए, है ना? फिर से रिविजिट करिए टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, समझिए, एग्जाम्पल्स को देखिए, फिर प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, और फिर क्विज लीजिए, ट्राई करिए और चेक करिए कि कितना हमने ग्रैब किया, कितना हम इम्प्रूव किए। ऐसे ही आप जब डेली प्रैक्टिस में रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम एक काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट एक लंबे टाइम में देख पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।